संघ शिक्षा वर्ग के इस गरिमामय आयोजन में मंचासीन मान्यवरों के परिचय हेतु मैं विश्व संघ शिक्षा वर्ग कार्यवाह श्री प्रसाद जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री प्रसाद जी। Namaste all. A hearty welcome to this public function of Vishwa Sangha Shiksha Varg. Swayam Sevikas from around the world, they have spent over 2 weeks developing the understanding the skills in doing Samaj Sanghatan work in their own countries. Very soon, we will witness the various displays that will be presented by our Shikshavatins. I would like to welcome each and every distinguished guest present here. आप सबका हार्दिक स्वागत। I would like to introduce the delegatories present on the stage. We are fortunate to have as the chief guest for this program Professor Neeraja Gupta. Professor Neeraja Gupta is the Vice Chancellor of Sanjay University of Buddhist and Indic Studies. Professor Neeraja ji worked as principal at Bharatiya Vidya Bhavan Shed College of Arts and Commerce, Ahmedabad. She also worked as advisor for Gujarat University, Ahmedabad from 2006 to 2012 for the foreign education program. She has visited 42 countries for academic activities. Professor Neeraja Gupta ji knows 9 languages including Urdu, English, Marathi, Assamese and Russian. Besides Sanskrit, she has good command over Prakrit language. She has done extensive research in various versions of Ramayana. We are very happy to welcome Professor Neeraja ji. We feel very happy and fortunate to have amongst us Param Pujaniya Sarsanga Chalak Mananiya Mohanji Bhagavat. He hails from Sangha family. He is 3rd generation of Swayam Sevak. Mohanji is veterinary doctor by education. He became a Sangha Pracharak in 1974. He held many responsibilities at various levels, including Akhila Bharatiya Sharirik Pramukh and Akhila Bharatiya Prachar Pramukh. For 9 years, he has Manya Sarkariwah. Since 2009, he has been our Param Pujaniya Sarsanga Chalak. Apart from his extensive travel in Bharat, he has traveled to many countries like UK, USA, Kenya, etc. We look forward to the guidance from Mananiya Mohanji. I would like to introduce Mananiya Alkata Inamdar. Alkata ji has been Sevika since childhood. She lives in Belgavi, Karnataka. Currently, Akhila Bharatiya Saha Karyavahika of Rashtra Sevika Samadhi. She is the Mananiya Sarvadhikari of Sevika Vishwa Sangha Shiksha Varg. We have Dr. Sadishi Mod, a resident of Mumbai. Sadishi is the Mananiya Prant Sangha Chalak of Konkan Prant and the Mananiya Sarvadhikari of Swayam Sevak Vishwa Sangha Shiksha Varg. He is a director of Vivekananda Education Society's Institute of Management Studies and Research, Mumbai. He has written many books on management and Bhagavad Gita. Next, I would like to introduce Sri Ashokji Pandey. Ashokji Pandey is Mananiya Pranta Sangha Chalak of Madhya Bharat Prant. He is a retired district judge and former chairman of
Madhya Pradesh Public Service Commission. He lives in Bhopal. I would also like to acknowledge the presence of our Akhila Bharatiya Adhikaris here. Maniniya Bhayaji Joshi. Currently, Akhila Bharatiya Karyakarani Sadasya. Bhayaji served as Sar Karyavah of Rashtriya Swayamsevak Sangh for 12 years. Sushri Bhagyashree ji Satyaye, Rashtra Sevika Samadhi Akhila Bharatiya Karyakarani Sadasya and Mahila Samanya Saha Samyojika. I would like to request Alkatai ji to formally welcome today's our chief guest, Professor Neeraj Gupta ji, by presenting our token of appreciation. शारीरिक प्रदर्शन हेतु मुख्य शिक्षक महोदय। Our first Sharik presentation is Niyud. Niyud is an ancient Indian form of martial arts. In Shaka, Niyud helps to build strength and gives Swayamsevaks the confidence to be able to defend themselves and the Samaj.
The next presentation is Dand. Dand is also a shastra used for self-defense. It builds strength, coordination, and confidence in Swayamsevaks and Sevikas. Today, Swayamsevaks will present some key prayogs with Dand. The next presentation will be Yogchap. Yogchap is a traditional Indian instrument used during various festivals in many states in Bharat. Yogchap will be presented in a folk style by Sevikas in various formations. धर्म की जय हो, एक हमारा नारा। ऋषि मुनियों की संतति हम हैं, उच्चादर्श हमारा। विश्व धर्म की नियमित शाखा संस्कारों से सीखे सभी नियम अनुशासन। समाज गति हो अक्षय निष्ठा,
करे समर्पित तन मन धन हो। धर्म भूमि का कण कण तृण तृण है प्राणों से प्यारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है उच्चादर्श हमारा। विश्व धर्म की रूढ़ी कुरीति और विषमता ऊंच नीच का भाव मिटाकर संगठना ही शंख ध्वनि हो। बंधु बंधु का भाव जगाकर नव जागृति का सूर्य उगाए है संकल्प हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है उच्चादर्श हमारा। विश्व धर्म की अपने शील तेज पौरुष से करे संगठित हिंदू सारा। धरती से लेकर अंबर तक गूंज उठे जयकार हमारा। प्रतिपल चिंतन ध्येय देव का जीवन कार्य हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है उच्चादर्श हमारा। विश्व धर्म की जय हो एक हमारा नारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है उच्चादर्श हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है उच्चादर्श हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हम है उच्चादर्श हमारा। The next presentation is Yogasan. As we know, Yogasan is an ancient Indian practice which enhances physical and mental well-being. Through the physical postures, it is beneficial for various ailments and overall fitness of the body.
The next presentation is Dhwaj Sanchalan by Sevikas. This is a combination of marching formations with the Dhwaj. The fluttering of the Dhwaj adds color to the various formations and it develops the bhav of walking together in unison. The next presentation is Ghosh. Swayamsevaks will present various tunes based on Indian classical music using Vamshi, Anak and Shank while marching together in unison.
with Ghosh. This inculcates of working and moving together in a coordinated way. गत 17 जुलाई 2022 से आरंभ विश्व संघ शिक्षा वर्ग एवं 22 जुलाई 2022 से आरंभ विश्व समिति शिक्षा वर्ग दोनों वर्गों के व्रत निवेदन एवं आभार हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ संघ शिक्षा वर्ग सर्वाधिकारी माननीय सतीश जी मोड़ भाई साहब को वो अपना व्रत निवेदन रखें। आदरणीय भाई साहब। इस भोपाल नगरी में दो वर्ग अलग अलग हुए, एक स्वयंसेवकों का वर्ग और एक सेविकाओं का वर्ग। स्वयंसेवकों का वर्ग, उसके लिए स्वयंसेवकों का आगमन 16 और 17 जुलाई के बीच हुआ। वर्ग का प्रारंभ हवन के द्वारा हुआ 17 जुलाई को और उद्घाटन 17 जुलाई के ही दिन माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी के द्वारा किया गया। स्वयंसेवकों के वर्ग में 13 देशों से 53 शिक्षार्थी फ्रॉम 13 कंट्रीज 53 शिक्षार्थी उपस्थित हुए। यदि उम्र देखी जाए तो 18 से लेकर 56 वर्ष की उम्र तक के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। ये सभी स्वयंसेवक, इसमें कुछ छात्र हैं और कुछ बिजनेस में अपना स्वयं का बिजनेस करने वाले हैं और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। इनके जो दिनचर्या होती थी, सुबह 5:15 बजे सभी स्वयंसेवक उठ जाते थे और इस चिंतन से दिनचर्या का प्रारंभ होता था। उसके बाद में शाखा, शारीरिक और कई तरह के शारीरिक के विषय जो प्रदर्शन अभी आपने देखा, उसका वहाँ अभ्यास होता था। 29 जुलाई को पथ संचलन ऐसा एक कार्यक्रम किया गया। 3 किलोमीटर का यह पथ संचलन शौर्य स्मारक यहाँ से प्रारंभ होकर वनवासी कल्याण वहाँ पर समाप्त हुआ। इस पूरे पथ संचलन का कई जगहों पर भोपाल के नागरिकों ने पुष्प वर्षा करके बहुत ही अच्छा स्वागत किया। एक मातृभोजन का ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें स्वयंसेवक के परिवारों से माता और उनका परिवार
वर्ग स्थान पर आते हैं और एक एक दो दो स्वयंसेवक की टोली उस परिवार के साथ बैठ करके भोजन करती है। तो ऐसा मातृ भोजन का कार्यक्रम 3 अगस्त को हुआ। उसके अलावा रात्रि में कुछ विशेष कार्यक्रम हुए। उसमें मध्य प्रदेश गौरव कल्चरल डांसेस, जो भोपाल के नज़दीक जो ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा किए गए, मलखम्ब का कुछ प्रयोग हुआ। इस तरह के अन्य कई कार्यक्रम हुए। इसमें एक विशेष रहा राम जन्मभूमि मंदिर, उसकी इस समय निर्माण की क्या अवस्था है वह बताई गई। इस वर्ग स्थान पर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। उसमें बहुत सारे ऋषि और मुनि, जिस तरह से वेदों उपनिषदों में अन्य ग्रंथों में उनका वर्णन है, उसके आधार के ऊपर उनके चित्र, बहुत सारे विश्व में कई जगहों पर हिंदू देवताओं की मूर्तियां होती है, उसकी भी प्रदर्शनी लगी थी। और भारत के बाहर हिंदू धर्म मानने वालों का क्या योगदान है उस विषय में भी एक प्रदर्शनी थी। सेविका का वर्ग 21 जुलाई से प्रारंभ हुआ। इसमें विशेषता ये रही कि बाहर के देशों से आने वाली सभी सेविकाओं को किसी न किसी घर में रुकने की व्यवस्था थी और वहां पर कुछ समय रुकने के बाद में बहुत ही पारंपरिक पद्धति से उनका वर्ग में आना हुआ। सेविकाओं के वर्ग का उद्घाटन 22 जुलाई को वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांतक्का जी के द्वारा हुआ। इस सेविकाओं के वर्ग में 8 देशों से 31 शिक्षार्थी उपस्थित रहे और उम्र जो है 17 वर्ष से 54 वर्ष की उम्र तक की सेविकाएं हैं। इसमें भी कुछ सेविकाएं छात्र हैं और प्रोफेशनल्स हैं। इसमें कुछ सेविकाएं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करने वाली भी हैं। यहाँ पर इनका दिन 5 बजे प्रारंभ होता था और इस चिंतन के द्वारा, और वैसे ही योग अभ्यास और कई तरह के शारीरिक कार्यक्रम शाखाओं में होते थे। दंड, यष्टि, नियुद्ध, इस तरह के कई शारीरिक कार्यक्रम सिखाए गए। एक विशेष अभ्यास शिव संकल्प सुक्त, इसका भी यहाँ पर हुआ। इस वर्ग में भी मातृ भोजन 28 जुलाई को हुआ और भोपाल के 30 परिवारों से माताएं आई और उसी तरह से यहाँ पर भी मातृ भोजन का कार्यक्रम हुआ। सेविकाओं का पथ संचलन 31 जुलाई को हुआ। यह अटल मार्ग से प्रारंभ हुआ। यह संचलन भी 3 किलोमीटर का था। करीब 200 सेविकाएं, 200 से अधिक सेविकाएं जो आसपास के जिलों की थी, वो भी इस पथ संचलन में सम्मिलित हुई और इसका भी स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे पथ पर हुआ। और स्वागत करने वालों में कुछ महिलाएं, झांसी की रानी अहिल्याबाई, ऐसा वेश भी धारण करके आई थी। एक विशेष रूप से स्वाधीनता का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, इसके लिए 3 विशेष लेक्चर्स का भी आयोजन किया गया और एक विशेष विषय रखा गया पद्मश्री निवेदिता जी भिड़े के द्वारा, हिंदुत्व में अस्तित्व की कल्पना। यहाँ पर भी प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें बहुत सारी जो सेविकाएं पूर्व में रही हैं उनके बारे में दर्शन, टेम्पल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल क्लोथिंग, इस तरह के विषय रखे गए। इस तरह के दोनों वर्ग को अच्छी तरह से संपन्न करने में बहुत सी संस्थाओं और व्यक्तियों की भूमिका रही है, तो उसका मैं आभार प्रदर्शन भी इस समय करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा डॉक्टर नीरजा जी गुप्ता का, जो हमारी प्रमुख अतिथि हैं। भोपाल नगर निगम ने अच्छा सहयोग दिया, पुलिस प्रशासन ने भी इस पूरे वर्ग के संचालन में सहयोग दिया, पथ संचलन में सहयोग दिया। मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की व्यवस्था के कारण पूरे समय पर संघ स्थान पर, वर्ग स्थान पर बिजली रही। बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर स्वयंसेवकों का वर्ग हुआ, उनका भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। और सेविकाओं का वर्ग समाज सेवा न्यास ट्रस्ट यहाँ पर किया गया, उसके भी संचालकों का मैं आभार प्रदर्शित करता हूं।
मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स मॉल, जहां पर कि अभी यह प्रकट समारोह हो रहा है, उन्होंने इतना अच्छा स्थान इसके लिए उपलब्ध कराया, उनका भी धन्यवाद। डायरेक्टर ऑफ शौर्य स्मारक, जहां से स्वयंसेवकों का पथ संचलन प्रारंभ हुआ, उनका भी धन्यवाद है। और मैनेजमेंट ऑफ मॉडल स्कूल्स, जहां सेविकाओं का पथ संचलन प्रारंभ हुआ, उनके लिए भी धन्यवाद है। विक्रमादित्य शोध संस्थान और सांची विद्यापीठ, इन्होंने बहुत प्रयत्न करके प्रदर्शनी लगाई, उनके लिए भी धन्यवाद है। सबसे अधिक आप सभी जो इस प्रकट समारोह में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। ऑनरेबल डॉक्टर्स, वाइस चांसलर्स, जजेस, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑथर्स, जर्नलिस्ट्स, मीडिया पर्सनल और प्रोमिनेंट वुमेन इन वेरियस फील्ड्स, ऐसे सभी विशेष निमंत्रित इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। उसके अलावा भी जो पूरे भोपाल के जो संघ के वेल विशर्स हैं और जो सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्यतः वर्गों में सभी शिक्षार्थियों के अनुभव विशेष व अनेक अनोखे होते ही हैं, किंतु समय सीमा की मर्यादा का पालन करते हुए हम यहाँ 4 शिविरार्थियों के अनुभव आप सभी के समक्ष साझा करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं समिति शिक्षा वर्ग से केन्या से आई बहन हीर पारिक को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपना अनुभव कथन यहाँ साझा करें। बहन हीर पारिक। Namaste everyone, I'm Heer Parik as introduced from Kenya, and I'll be speaking about my experience throughout this work. So starting with the arriving to Bhopal, when we came here we were assigned to certain host families, and they were very, very loving, very caring. They made sure I eat 2 rotis. Well, I eat 1 only. So that was, they took absolute great care. And moving on, I would like to thank adhikaris of our work, Mananya Alkatai ji, Pinkesh ji, Chandatai, and all prabandhikas that were present at our work. They took good care of us, and whenever someone was sick, they made sure they had medicines, and whatever we wanted was provided to us. Food, talking about food. Now that's the most important thing, yeah. So the food was so yummy, very tasty. All synonyms that can describe tasty can be stated. So Bhojan was amazing. So throughout the work, I've learned a lot of Sharirik, Bodhik. Sharirik has always been my favorite. Bodhik was, I didn't hate it, but it was here. Sharirik was here, Bodhik here. But after the Bodhiks we were given, and all the Vyaktas had told us, it was a great inspiration, and I think I've started to like Bodhik. Next most memorable moment was, as told, the Path Sanchalan that happened on the 31st of July, and I was part of the Ghosh Gana, which was a dream come true, because I've always loved to play the Anak, and being part of the Ghosh Gana, being with so many Sevikas, was a very nice feeling. Last but not least, thanks to all Shiksharthis who are my fellow sisters now, and they made sure that whenever the first initial days I felt homesick, and they used to check on me, have you called your parents? So thanks for that, and I'm taking back home so many memories, so many teachings, and I'll make sure to implement them there in Kenya. Thanks again for these amazing memories and unforgettable work experience, and sorry for all mistakes I've made. Thanks.
अनुभव कथन की अगली श्रृंखला में नाइजीरिया से आए श्री पुष्पराज जी मोगल जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज मोगल है। मैं पश्चिम अफ्रीका के नाइजीरिया देश से आया हूँ। मेरे लिए ये वर्ग जो है ये थोड़ा विशेष है। इसका कारण ये है कि संघ की जो शिक्षा पद्धति है उसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष ये करिकुलम है। मैंने अपना प्रथम वर्ष किया 1987 में, 1987 में जब मैं 10वीं पास हुआ था और भारत में किया था। और इसी तरह रिगरस संघ प्रशिक्षण था। जब मैं अभी इस वर्ग में आया हूँ तो 87 से अभी करीबन 35 साल हुए हैं। तो आज जैसे माननीय सर्वाधिकारी जी ने बताया कि इस वर्ग में उम्र 17 से लेकर 52 तक या 54 तक सब हम लोग हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये परीक्षा थी कि इस एज के स्वयंसेवकों के साथ मैं अपने आप को कैसे मिट कर पाऊंगा। तो मैं जब वर्ग में आया था तो मेरा वजन था 91 किलोज, अभी मैं 84 किलोज हो गया हूँ। और मैंने बहुत मेहनत की कि सबके साथ मैं अपने आप को कोप करूं। जैसे बताया गया, सवेरे 5:15 बजे बिगुल बजता था जिसको हम शंख कहते हैं, और रात के 9:30 बजे तक। और अत्यंत समय सूचकता के अनुसार बौद्धिक और शारीरिक ये दो सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए थे। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बौद्धिक का ज्यादा तकलीफ होती नहीं है लेकिन शारीरिक की तकलीफ होती है। तो सवेरे 2.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे जो शारीरिक है, इसमें विविध विषयों पे अभ्यास हुआ। पदविन्यास हुआ, दंड युद्ध हुआ जिसका प्रदर्शन आपने देखा, नियुद्ध हुआ, योगासन, अष्टांग योग। तो उम्र के हिसाब से मैंने अष्टांग योग चुना कि जिसमें कम से कम तकलीफ हो। लेकिन अष्टांग योग के साथ योगासन करते करते ये भी पता चला कि उसमें भी तकलीफ है, बट उसको मैंने बड़ी मेहनत से सीखा और मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है और ये करिकुलम को मैं आगे लेके जाऊंगा। हमारा जो संघ का उद्दिष्ट है, विशेष करके हिंदू स्वयंसेवक संघ में, जो विश्व भर के हिंदू समाज को संगठित करके सकल समाज का सर्वांगीण विकास करने की मेहनत करना, कार्य करते रहना। इस विषय में जो अनेक बौद्धिक विषय इस वर्ग में हुए, इससे मुझे बहुत प्रभावित हुआ। मातृ भोजन के अलावा पथ संचलन, ग्राम शाखा विजिट, ये सारे अनुभव बहुत अच्छे रहे। शिव जो शिक्षक है वो मेरे से कम उम्र से लेकर मेरे अपनी उम्र तक के शिक्षक, लेकिन अत्यंत प्रभावी और निपुण शिक्षक। एक एक शिक्षार्थी को जब तक वो अपना काम सही न करे तब तक समय देकर ठीक करने वाले, खास करके जगन जी, राघव जी, मेरे अपने गणित शिक्षक संतोष जी, उसके अलावा कलाई जी, मुख्य शिक्षक हमारे जयमीन जी, हर एक विषय में ध्यान देकर काम करने वाले। और जो शिक्षकों का मैंने नाम नहीं लिया सब मेरे मन में है। इसके अलावा अलग अलग अधिकारी जो विविध क्षेत्र से आए, समिति से भी आए, उनका जो मार्गदर्शन हुआ अत्यंत प्रभावी और बौद्धिक में सामान्य उम्र से लेकर जिनको अनुभव है उनको सबको समझे और अपना कार्य आगे लेके जाने के लिए वो प्रेरणादायक हो। इस तरीके से बौद्धिक इस वर्ग में हुआ। अभी आपने समारोह कार्यक्रम में देखा कि कितना अच्छी तरीके से सारी उम्र के लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया। ये जो समता है, ये समता, संघ का आचार विभाग, अनुशासन, ये सारी चीजें हम वापस लेके जाएंगे और जो हमारे देश में अभी तक कार्य चल रहा है उसको और आगे बढ़ाने की ये प्रेरणा से कोशिश करेंगे और नए कार्यकर्ता निर्माण के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। यूके से समिति शिक्षा वर्ग में आई श्रीमती मनीषा वर्षानी जी को अनुभव कथन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मनीषा वर्षानी जी। Namaste. I am Manisha Varsani from UK. So when I first entered the Stan, everyone was so welcoming. I actually felt like I had come back home. It didn't actually feel like I was in the UK. We started with our Sharirik Vishes. First 2 days was just practicing our Sharirik Vishes. And the Shikshikas, our Gana was slightly, it took us longer to learn. And the Shikshikas had so much patience and
hope that no, this Karna will definitely do it. So moving on to our own practice, we in the evening every day after our Manoranjan, we used to practice all the different vishays, write notes, practice. In our head, we actually thought we were doing everything right until the next day when the Shikshika comes and says, no, what you've done is completely wrong. But that's how we learn. We learned from our mistakes. In our avas, there was different sevikas from all over the country, all over the world, speaking different languages. I am Gujarati, so I didn't actually understand quite a few of the languages, but they were so mindful of when they were conversing in their own language, and they translated everything to me such that I could also laugh with them. It was how two different, there was no language barrier. So, and friendship without any language barrier. Moving on to, you can see with our age, we get lots of aches and pains when we do sharirik. So every evening back was hurting, legs were aching. We used to go to our yoga shikshika. She was amazing. She would show you one asana and within minutes the pain is gone. And you are like, wow, this is magic. I've never experienced this before. Moving on to all the Adhikari Gana. We've always, during the pandemic, we got an opportunity to listen to their bodhics, but never got the opportunity to speak with them face to face. This gave us a very good opportunity to actually speak to them face to face, learn about them, which really inspired us, such that we now have that, we can take that inspiration to our own countries and move the Karya forward. Pad Sanchalan was amazing, very emotional feeling to do Pad Sanchalan in our Punya Bhumi. I leave from here with mixed emotions. And I'm very fortunate to be part of this Sangh Parivar. Thank you for giving me this opportunity. Dhanyavad. अब मैं शिक्षार्थी के रूप में आए श्री करण दुसारा जी को अनुभव कथन के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री करण दुसारा जी। Namaste. I'm Karan Dusara from the UK. I come from a town called Rugby. It's where the actual sport itself was invented. And I've been coming to Shaka since I was a young child. It's been about 20 years now. Coming to Vishwa Sangh Shiksha Varg, it's been an experience. It's been quite, I wouldn't say torturous, but it's really stretched me. Stretched me mentally and physically. Waking up every day at 5 a.m. to the sound of a shank from Raghavji, our gun shikshak, wasn't always my favorite part of the day, but it brought in that discipline. Moving through the day, we went on with early morning shaka, where we learnt various different karyas, such as Niyud, Yashti, Dand and Yog, and various other care, etc. This really stretched my limbs, I would say. I was always aches and pains after the day, and with the heat as well. It wasn't pleasant, but it was definitely fulfilling. Moving on through the day, we went into Bodhik. Bodhik really enlightened a part of my mind which I didn't know things about. It shed light on ideas and inspired me to take things further in my own country. Personally,
I am very interested in Ghosh, so the chance to take up Shank was great. I got to learn to play the Shank, various rachnas from some really experienced Akhil Bharatiya Ghosh Sadasyas. And it was great to see the wealth of knowledge that they have. I was able to play in the Pad Sanchalan, in the Ghosh Gana, and what an amazing experience. Just the smells, the views, the entire feeling of it was so satisfying and fulfilling. It really felt like I did come home. In one of our Bodhiks recently, Mananiya Sarsanchalak told us that Bharat is our dharma bhumi. UK may be my karma bhumi, my janma bhumi, but Bharat is my dharma bhumi. And this experience at Sangh Shiksha Varg has really stressed this fact. I'd like to thank all the Swayam Sevaks, the Prabandhaks, the Shikshaks, the Adhikaris, everyone, and the people of Bhopal. Thank you for welcoming us and having us at Dvitiya Varsh. Dhanyavad. अनुभव कथन के उपरांत सांघिक गीत सभी शिक्षार्थी सामूहिक गीत प्रस्तुत करेंगे। Sanghik Geet. I will sing the first line and we will all sing together after. देश देश में हर समाज में संघ मंत्र का गूंजे स्वर। देश देश में हर
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय डॉक्टर नीरजा गुप्ता दीदी से मैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय नीरजा गुप्ता जी। परम आदरणीय परम पूज्य सर संचालक जी, आपको और आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। प्रकट समारोह के आज की इस विशेष संध्या पर यहाँ उपस्थित होते हुए हर्ष भी है और गर्व भी है। एक ऐसी संस्कृति को हम साथ लेकर चल रहे हैं। हम कई बार पूछते हैं क्या है जो हमारा कनेक्ट है, और वो जो कनेक्ट है वो है हमारी सांस्कृतिक गठरी। हम और आप एक ही सांस्कृतिक गठरी को वहन करते हैं, और जब हम उस गठरी को खोलते हैं तो उसमें से कभी भाषा निकलती है, कभी त्योहार निकलते हैं, कभी खान पान निकलते हैं, लेकिन जो वस्तु अवश्य रूप से निकलती है वो है हमारी भारतीयता। लगभग 2002 से ये शब्द प्रचलन में आया। आप लोगों ने भी सुना होगा डायस्पोरा। इससे पहले ये शब्द प्रचलन में नहीं था। तो इसकी खोजबीन करते हैं तो पता चलता है कि ग्रीक शब्द है, पर ऐसा नहीं है। ये एक संस्कृत समास है, द्विस्फुर। प्राग ऐतिहासिक काल से हम भारतीय अनेक सुदूर स्थानों की यात्राएं करते आए हैं, और द्विस्फुर यानी डाया यानी द्वि, स्पोरा यानी स्फुर, स्फुरित हुआ हुआ, यानी जो दो जगह स्फुरित होता है, एक मातृभूमि में और एक वहां जहां वो संचरण करने गया है। तो ये जो डायस्पोरा है, जो एक कनेक्ट लेकर चलता है, ये हमारी संस्कृति को विदेश में इस तरह से स्फुरित करता है कि हम कई बार उसको देखते हैं कि क्या हम एक बरगद के वृक्ष की तरह बन गए हैं। क्योंकि बरगद का वृक्ष हमें पता है कि इतना भारी होता है कि जब उसकी जड़ें जमीन तक पहुंच जाती हैं, शाखाएं जब जमीन पे पहुंचती हैं, तो वो जमीन में एक नई जड़ बना लेता है, वहां से एक नया पेड़ खड़ा होता है। बरगद के पेड़ कई किलोमीटर्स तक एक के बाद एक नए वृक्ष बनते चले जाते हैं। तो हम भारतीय अपनी संस्कृति को एक बैनियन ट्री की तरह, एक बरगद के वृक्ष की तरह, न जाने कितने देशों में, कितनी सभ्यताओं में, कितनी संस्कृतियों में हम नए वृक्ष तो बने, लेकिन जो मूल में हमारा बरगद की जड़ है वो हमने नहीं छोड़ी है। तो कई बार हम ऐसे पुष्पित प्रफुल्लित होते दिखते हैं। कई बार मैं जब आपस में डायलॉग चलता है, हमारे बच्चे बाहर से आते हैं, तो उनसे पूछती हूँ कि कैसे अपनी अस्मिता आप बचा के रखते हैं। तो फिर एक छवि उभरती है, जैसे एक सलाद का कटोरा होता है। कहने को वो सलाद है, लेकिन उसके हर एक गुण उसमें अवशिष्ट जो उसमें है वो रहते हैं। उसके हर एक की अस्मिता अपने रूप में भी बरकरार रहती है, और वो एक संपूर्ण अस्मिता का भी परिचायक होता है। तो हम जिन संस्कृतियों की बात कर रहे हैं, वो मूल में जो भारतीयता है, जो सांस्कृतिक गठरी का भाग है, वो अनेकों तरह से, अनेकों प्रकार लेता हुआ विश्व में अपने स्वरूप को प्रकट करता है। लेकिन जो सबसे मोहक मुझे लगती है, क्योंकि कई बार हम जब पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं तो फास्ट फूड की भी बात आती है, और फास्ट फूड में सबसे प्रचलित जो फूड है वो सैंडविच कहलाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सैंडविच किसके नाम से जाना जाता है? सैंडविच उसके नाम से जाना जाता है जो बीच में होता है। और बीच में जब हम प्रवासी बन के जाते हैं तो एक तरफ मातृभूमि के मूल्य हैं, एक तरफ जिसे हम कहते हैं होमलैंड एंड होस्टलैंड, उनके मूल्य हैं, लेकिन बीच में हम हैं जिससे हमारा परिचय होता है। और यही परिचय हमें न जाने कितनी सदियों से, कितनी शताब्दियों से उन भूमि पर सफलता देता है, क्योंकि हमने अपना परिचय नहीं खोया है। और वही भारतीयता है जो सनातनी है, जो सशक्त है, जो बहुत मृदुल है, जो दूसरे के दर्द को समझती है और अपने उत्सव को भी जीती है।
मैं एक अंतिम बात कह के आज अपनी बात पूरी करूंगी। हमें बहुत सिखाया जाता है कि पश्चिम ने हमको ह्यूमन राइट्स बताए, पश्चिम ने हमको फेमिनिज्म सिखाया, पश्चिम ने हमको अपने लिए लड़ना सिखाया, लेकिन जब मैं अपनी संस्कृति से उसकी तुलना करती हूँ तो मुझे लगता है पश्चिम ABC पर ही अटका हुआ है। फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, एक महिला हूं और कई बार इस तरफ दृष्टि जाती है क्योंकि कभी सीता पर प्रश्न उठाते हैं, कभी कुंती पर उठाते हैं, कभी द्रौपदी पर उठाते हैं, तो मैं देखती हूँ सबसे ज्यादा सिंगल मदर्स, एकल माताएं किसी संस्कृति में हुई हैं तो सिर्फ भारत में हुई हैं। और कैसी माताएं, उन्होंने उन बालकों को, उन शिशुओं को राजा बनाकर छोड़ा। सीता एक थी, कुंती एक थी, द्रौपदी एक थी, सुभद्रा एक थी, हिडिंबा एक थी, जाबाली एक थी। हर वर्ग से वो जो एकल माताएं हैं, ऐसे उदाहरण विश्व में नहीं मिलते। हम फेमिनिज्म राइट्स की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाहर जाके कामकाजी महिलाओं के लिए आंदोलन किए, पर उनका क्या जो घर में है, क्या उन महिलाओं का कोई मोल नहीं, उन स्त्रियों का कोई मोल नहीं? आज हम कहते हैं मैटरनिटी लीव 6 महीने की हो गई है, यानी इतना बड़ा समय मैटरनिटी लीव महिला को अधिकार दिया है। हमारे यहाँ वो अधिकार सिर्फ पूरे विश्व में कामकाजी महिला को मिलता है, लेकिन भारतीय संस्कृति देखें तो जो 40 दिन का सूतक है, वो चाहे कामकाजी महिला हो, चाहे घर में प्रवास करने वाली माँ हो, हर माँ को वो अधिकार प्राप्त है। हमें आज आवश्यकता है अपने जो परंपराएं हैं उनको हम डिकोड करें, उन परंपराओं के अर्थ को समझें, उनके मूल में निहित उन मूल्यों को समझें। हमने कह दिया लक्ष्मण रेखा सीता के लिए थी, सीता तो लक्ष्मण रेखा के आर बाहर आ जा सकती थी, जिसको उस लक्ष्मण रेखा ने रोका वो रावण था। और कैसा रावण? साधु वेश का रावण। हमें डिकोड करना होगा अपनी संस्कृतियों को, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत पुष्ट है और उसी पुष्टता का परिणाम है कि सदियों से, न जाने प्राग ऐतिहासिक काल से हम संचरण करते आए हैं, सफल होते आए हैं, और उस भारतीयता को आज भी हम विश्व में पताका की तरह देख सकते हैं। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय से आप सेफ अपने घर पहुंचे। इस अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर देने के लिए बहुत आभार, प्रणाम, सादर वंदन। धन्यवाद दीदी। एकल गीत के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक माननीय मोहन जी भागवत का उद्बोधन प्राप्त होगा, तो मैं परम पूजनीय सरसंघचालक जी से एकल गीत के उपरांत उद्बोधन हेतु सादर प्रार्थना करती हूँ। हिंदू एकता भाव जगा कर सृजन मार्ग से बढ़ते जाना, ध्येय हुआ मानस पर अंकित, कंटक पथ से क्या घबराना, कंटक पथ से क्या घबराना। भूख गरीबी भय लाचारी, भेदभाव से जर्जर मानव, स्वार्थ मार्ग पर बढ़ते बढ़ते शोषण का फिर आया दानव, भोगवाद का बड़ा अंधेरा, जग चाहे श्रम दीप बुझाना, कंटक पथ से क्या घबराना। विध्वंसक शस्त्रों का संचय राख करेगा धरणी सारी,
मानवता की बलि चढ़ाने दानवता करती तैयारी। संस्कारों के बल पर हमको धर्म ध्वज जग में फहराना। कंटक पथ से क्या घबराना। पुरखों ने सिखलाया हमको, ऋषियों ने राह दिखाई। सत्य विजेता रहा हमेशा, रीत यही हमने अपनाई। जन जन के मन मन में फिर से भाव यही है हमें जगाना। कंटक पथ से क्या घबराना। ज्ञान ज्योति से जगमग है हम, शील बने विश्वास हमारा। समरसता का भाव हृदय में, विश्व बंधुता श्वास हमारा। करे परिश्रम त्याग तपस्या, वसुधा को अर्पण हो जाना। कंटक पथ से क्या घबराना। हिंदू एकता भाव जगा कर सृजन मार्ग से बढ़ते जाना। ध्येय हुआ मानस पर अंकित, कंटक पथ से क्या घबराना। कंटक पथ से क्या घबराना। कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, हिंदू स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग तथा सेविका समिति के शिक्षा वर्ग के दोनों माननीय सर्वाधिकारी, आदरणीय प्रांत संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण एवं आत्मीय शिक्षार्थी बंधु, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आपके सामने ये जो दृश्य उपस्थित हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी पांचों उपमहाद्वीपों से हिंदू समाज की वर्तमान पीढ़ी जो सक्रिय है और नई पीढ़ी, उन दोनों के प्रतिनिधि रूप में शिक्षार्थी बंधु और भगिनी, सेवक और सेविकाएं यहां पर संघ का प्रशिक्षण ले रही है। सांघिक गीत में वर्णन हुआ उसका, देश देश में हर समाज में विश्व धर्म को लेकर संघ मंत्र का स्वर गूंजा। कई कारणों से ये दृश्य रोचक लगता है। देखने लायक लगता है। कोई विशिष्ट बात इसमें लगती है। एक छोटा सा संघ आज उसका एक विश्वव्यापी स्वरूप है। इसलिए भी लगता है, अथवा विदेशों में पलने बढ़े हुए लोग फिर से अपनी परंपरा की कोई सीख ले रहे हैं, ये भी एक बात देखने लायक लगती है
परंतु हमको ये समझना चाहिए कि ये सारी बातें बिल्कुल स्वाभाविक है। डॉक्टर गुप्ता ने हमको बताया डायस्पोरा 2 जगह स्फुरित होता है। मुझे स्मरण आया, एक रवि महाराज थे, शायद कैरिबियंस में थे, और कैरिबियंस के हिंदू तरुणों का तरुणियों का वो एकत्रीकरण साल में एक बार करते थे। अच्छी खासी उसकी तैयारी होती थी। हर वर्ष के एकत्रीकरण के लिए एक गीत दिया जाता था। सब लोग वो गीत याद करते थे और उसको बोलते थे। गीत अर्थात अंग्रेजी में होता था, क्योंकि कैरिबियंस में जो अपने बंधु गए हैं उन्होंने अपनी हिंदू पहचान को कायम रखा है, लेकिन भाषा भूल गए हैं। तो 1 वर्ष के उनके गीत की जानकारी मुझे मिली। उस गीत में यह कहा गया था कि कैरिबियंस में रहने वाले हे हिंदू भाइयों बहनों, इसका दुख मत करो कि तुम अपनी पुण्य भूमि से, धर्म भूमि से, अपने मूल भूमि से इतने वर्षों से बिछड़े हो, पीढ़ियों से बिछड़े हो। इसका शोक मत करो, क्योंकि भगवान ने कुछ प्रयोजन है इसके लिए ये किया है। उसकी इच्छा से ये हुआ है। शायद भगवान ये चाहते हैं कि आपकी अच्छाई जो एक जगह संग्रहित हुई है, इसलिए आपके भाग्य में ये जो अपने स्वभूमि से निर्वसन और दूसरे भूमि में स्वभूमि से दूर उसका दर्शन तक नहीं होता, उसकी भाषा तक हम भूल गए, ऐसी स्थिति में भी उसकी पुरानी स्मृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी जतन करते हुए आप जो रह रहे हैं, उसका प्रयोजन है कि वहां से मिली अच्छाई को आपको सारी दुनिया को देना है। हमारे देश के लिए ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। हमारे देश के अस्तित्व का ये प्रयोजन है। योगी अरविंद का प्रसिद्ध भाषण है उत्तर पारा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। अलीपुर जेल में साक्षात वासुदेव ने मुझे ये बताया है। उस दिन उनके भाषण का विषय कुछ और था, लेकिन वहां जाकर उन्होंने कहा कि उस विषय पर मैं नहीं बोलने वाला, एक संदेश आपको पहुंचाने का आदेश मुझे मिला है, वही मैं दे रहा हूं। और उन्होंने कहा कि साक्षात भगवान वासुदेव ने मुझे बताया है कि सनातन धर्म का उत्थान होना चाहिए, ये भगवान की इच्छा है। और सनातन धर्म के उत्थान की पूर्व शर्त है हिंदू राष्ट्र का, हिंदुस्तान का उत्थान। उन्होंने उस समय कल्पना की थी, उनको नहीं पता संघ निकलने वाला है, संघ की शाखाएं और देश विदेश में जाएगी, वहां हिंदू स्वयंसेवक संघ तैयार होगा, उसके वर्ग होंगे, ये उनको पता नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने बताया भारतवर्ष को क्यों उठना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दुनिया के लिए जीना है। भारत के जीवन का प्रयोजन विश्व को धर्म देना ये है। ये अपना राष्ट्र, प्राचीन राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ, तो वेदों की ऋचा वर्णन करती है। ओम भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर विधा तपो दीक्षा मुपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। विश्व के कल्याण की इच्छा रखने वाले स्वरविद ऋषियों ने दुर्धर तप किया, उसमें से अपने राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई। किस लिए? हमारा धर्मप्राण राष्ट्र है। सबको जोड़ने वाले सत्य को हमने पाया। हमने इसलिए पाया कि हम खोजते चले गए। बाकी दुनिया बाहर सुख की खोज करते करते थक गई और बाहर जितना मिला उस पर समाधान करके रुक गई।
हमारे भी जो प्राचीन उपनिषद है सबसे, उसमें बाहर की खोज ही मिलती है। सत्य कहाँ मिलेगा? अग्नि में मिलेगा क्या? वायु में मिलेगा क्या? पंच महाभूतों में सत्य खोज रहे, पूरा नहीं मिलता। और इसलिए कभी किसी ऋषि को लगा कि हमको अब बाहर का हमने खोज लिया, अब अंदर खोजना चाहिए। उस दिन अध्यात्म शास्त्र का जन्म हुआ और इस अध्यात्म शास्त्र के आधार पर हमने अस्तित्व की एकता को खोज लिया। सब प्रकार की जड़ चेतन वस्तुओं से भरी विविधता दिखाने वाली ये दुनिया एकता का ही आविष्कार है। इसलिए सब जुड़े हैं, सब संबंधित है, इसलिए सबको मिलकर चलना है। सुख बाहर नहीं मिलेगा, सबकी एकता के उस मूल को पाने में शाश्वत कभी फीके न पड़ने वाले सुख का लाभ होगा। और यह सत्य हमको मिलने के बाद हमारा जीवन बदल गया। जीवन में हमारे सुख सुविधा तो उस समय चरम पर थी, परंतु समाधान हमको प्राप्त हो गया। और तब हमने ये सोचा कि अगर सारा विश्व एक ही है तो ये सारी बातें सारे विश्व तक पहुंचाने का हमारा काम है। इसलिए ऋषि ने हमको आदेश दिया, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। सारे विश्व भर के मानव अपने अपने जीवन की शिक्षा हमसे पाए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। भारत का उत्थान इतिहास के उतार चढ़ावों में जब जब हुआ है तब तब इसी प्रयोजन के लिए हुआ है। और इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं लगता। संघ स्थापना के 5 वर्ष पूर्व संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार नागपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन के व्यवस्था प्रमुख थे। अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे। तब प्रस्ताव दिए थे 2 विषय नियामक समिति के पास डॉक्टर साहब ने। पहला प्रस्ताव था गोवंश हत्या बंदी का, और दूसरा प्रस्ताव था कि कांग्रेस अपने ध्येय को घोषित करे कि भारत का संपूर्ण स्वातंत्र्य ये हमारा ध्येय है, और उसी में यह भी घोषित किया जाए कि स्वतंत्र भारत पूंजी के चंगुल से दुनिया के देशों की मुक्तता करेगा। डॉक्टर साहब के मन में उस समय भी जो विचार था उसका कैनवास इतना बड़ा था, भारत के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता और पूंजी के चंगुल से देशों की मुक्तता। पूंजी के चंगुल से यानी कैपिटलिज्म नहीं, वो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म से ये बात परे है। पूंजी के चंगुल से यानी अर्थ कामों के बंधनों से आज सारी दुनिया उसी में फंसकर आपस में लड़ रही है, उसी में फंसकर प्रकृति का शोषण कर रही है। केवल अर्थ काम को चाहते हैं, केवल अर्थ काम को समझते हैं, इसलिए सब कुछ पास में होने के बाद भी, विज्ञान का इतना विकास होने के बाद भी, मानवों के बारे में ज्ञान का इतना विकास होने के बाद भी कलह कायम है। पर्यावरण का संकट दरवाजा खटखटा रहा है। दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी ऐसा भय उत्पन्न हो रहा है। युद्ध थमते नहीं, संकुचितता कट्टरता मिटती नहीं। उस दृष्टि को पूर्ण बनाने वाला, अर्थ काम को उसकी उचित जगह देकर मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला, जोड़ने वाला तत्व, उसको धर्म कहते हैं। व्यक्ति और समाज को सृष्टि के साथ सामंजस्य से चलाते हुए परस्पर आदान प्रदान से सारे विश्व को परमेष्टि को और अग्रसर करने वाला तत्व, उसको आत्मा कहते हैं। वही परमात्मा है। शरीर मन बुद्धि का सामंजस्य साध कर मानव प्राणी का विकास मानवत्व से अति मानवत्व, वहां से देवत्व की ओर कराने वाला,
वही तत्व है, वो जोड़ने वाला तत्व अपने आचरण में लाना और दुनिया को देना, थोपना नहीं। जीवन किस लिए जीना? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। इस जीवन का व्यक्तिगत और सामूहिक उदाहरण एक देश के नाते भारत का होना चाहिए, एक समाज के नाते संपूर्ण दुनिया के हिंदू समाज का होना चाहिए। इसके लिए भारत के किसी चिंतक को बहुत विचार नहीं करना पड़ता। भारतीय मूल में वो अगर पक्का है, हिंदू समाज की अपनी परंपरा का उद्गम उसको अगर पता है, तो उसके विचार में सहज ही ये बात आएगी, जैसे डॉक्टर साहब के विचार में आई। और इस प्रकार का वर्ग पहली बार जब शुरू हुआ 1992 में बंगलोर में हुआ पहला वर्ग, उसके उद्घाटन में मैं उपस्थित था। वहां उस समय विश्व विभाग के जो संयोजक थे आदरणीय लक्ष्मणराव भिड़े जी, उनके उद्घाटन भाषण में यह बात मैंने सुनी कि इस तरुण पीढ़ी को अब संघ का काम और आगे ले जाना है। हिंदू संगठन का काम जो बाहर शुरू हुआ, भारत में चलने वाली शाखा कार्य पद्धति संपूर्ण विश्व में किसी भी समय किसी भी आयु वर्ग के लोगों में चल सकती है, यह सिद्ध हुआ। यह शाखा पद्धति मनुष्य को सदाचार प्रवृत्त बनाती है, यह भी सिद्ध हुआ। भिड़े जी कह रहे थे, अब नई पीढ़ी का यह काम है कि इस पद्धति के आधार पर हिंदू समाज का आदर्श जीवन खड़ा करे, उसके उदाहरण स्वयं बने, ताकि प्रत्येक हिंदू व्यक्ति संघ की ओर आकर्षित हो। मैं संघ बनूं, संघ का स्वयंसेवक बनूं, ऐसा उसको लगे। और केवल स्वयंसेवक को नहीं, उन देशों के लोगों को भी लगे कि ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक बीज जब वृक्ष बनने की आकांक्षा से मिट्टी में मिलता है, अपने आप को विसर्जित कर देता है। कोई बता नहीं सकता आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसमें से एक बड़ा वृक्ष तैयार होता है, उसका विस्तार होता है। एक वृक्ष से वृक्षों सा जंगल खड़ा होता है, और वो सारे वृक्ष अपनी जड़ों से, मूल जड़ों से जुड़े रहकर एक बड़ा वृक्षों का संभार बन जाते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक होता है। छोटा सा बीज मिट्टी में मिल जाता है, लता पल्लव पुष्प फल बीज सहित एक बड़ा वृक्ष खड़ा होना, ये उसके उत्कटता का स्वाभाविक परिणाम है। वैसा ही ये स्वाभाविक परिणाम है। और ऐसे वहां के हिंदू स्वयंसेवक संघ को देखकर मैंने विदेशी व्यक्तियों के उद्गार सुने हैं कि हमारा भी एकादा ऐसा संघ होना चाहिए। और केवल उद्गार नहीं सुने हैं, किसी देश ने अपने लोगों को संघ की इस पद्धति का अनुकरण करते हुए अपने देश के जागरण के लिए उनके देश का ऐसा काम शुरू भी किया है। हिंदुस्तान है किस लिए? संपूर्ण दुनिया को आज इस धर्म की आवश्यकता है जो संतुलन देता है, जो सबके प्रति आत्मीयता देता है, जो स्वदेशो भुवन त्रयः वसुधैव कुटुंबकम ऐसी भावनाएं उत्पन्न करता है, जो समन्वय सिखाता है, जो भौतिक सुख के द्वारा दुखों पर मात करते हुए आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा इन सबसे ऊपर उठकर मुक्ति के द्वार खोलने का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। ऐसा जीवन का उदाहरण संपूर्ण विश्व में प्रस्थापित कर रही है स्वयंसेवक, उसके लिए शिक्षित हो रहे हैं। संघ का काम भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से इस भारतवर्ष को परम वैभव बनाएगा, संपन्न करेगा, और यह भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा? इस भारतवर्ष की संतानें
जो भारतवर्ष में है और जो संपूर्ण दुनिया में आज उस देश के बहुत अच्छे रहिवासी या नागरिक बनकर उन देशों की भी सेवा कर रहे हैं। कहीं पर भी जो अनिवासी भारतीय है अथवा जो भारतीय वहां जाके वहां के नागरिक बने, उनके आचरण पर इतना सा भी दब्बा नहीं है। जहां जहां गए उस देश के वो एक एसेट बने। उन सारे लोगों के जीवन के माध्यम से उनके एक समाज के नाते, एक समूह के नाते, संगठित जीवन के माध्यम से संपूर्ण दुनिया अपने अपने संगठित जीवन का अपने पद्धति से आदर्श उत्पन्न करेगी, अपनी प्रकृति के आधार पर उसको सजाएगी, संभालेगी। ये थोपा नहीं जाएगा, ये देख के होगा। देख के जो अच्छा लगेगा दुनिया उसके पीछे जाएगी। और संपूर्ण विश्व में संपूर्ण मानवता को एक करने वाला एक वातावरण इसमें से खड़ा होगा। विश्व गुरु भारत के बिना बोले प्रत्यक्ष कृति से बताए उदाहरण का अनुकरण दुनिया करके एक नई सुखी सुंदर दुनिया का उदय होगा। ये सपना लेकर हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम उस देश में चलता है। सच स्वाभाविक हुआ है, पता नहीं था। जहाज पर जा रहे थे 1946 में, लगा कि हम संघ के स्वयंसेवक है, रोज प्रार्थना होनी चाहिए। एक संघ के स्वयंसेवक ने जहाज तो अंदर चला आया था समुद्र के, लेकिन जिधर से आया था भारत की ओर मुंह करके नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि शुरू किया। दूसरा एक स्वयंसेवक पास में था, उसने सुना, वो भी जाके शामिल हो गया। जहाज के डेक पर पहली शाखा लगी। वहां से इन संस्कारों को लेकर ये जो हिंदू स्वयंसेवक संघ उस देश का अलग स्वतंत्र वहां का पंजीकृत संगठन काम करता है, वो केवल हिंदू समाज के लिए नहीं करता है। हिंदू समाज का संगठित स्वरूप, सामर्थ्य संपन्न स्वरूप, सर्वांग सुंदर स्वरूप दुनिया के देशों के समाजों को वैसा बनकर संपूर्ण विश्व के जीवन में योगदान करने वाला समाज, देश, सारे कलह छोड़कर, संकुचित भेद भावना छोड़कर, लोभ और स्वार्थ छोड़कर, हवस छोड़कर, पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, नई सुखी सुंदर दुनिया का सृजन करेंगे। ऐसी इच्छा, संकल्प और पुरुषार्थ जगाने वाला ये काम है। वो काम कैसे चलता है, उसमें से क्या होता है, उसकी एक झलक के रूप में आपने इसको देखा है। आज आप इसके दर्शक बने हो, लेकिन दर्शक और दृश्य का ये अंतर समाप्त हो जाए और आगे चल के हम भी इसी दृश्य के अंग अपने अपने स्थान पर बने, इसी जीवन को जीने वाले हम भी बन जाए, ऐसा एक आवाहन, ऐसा एक अनुरोध आपके सामने मैं रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त कर। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं देवीं सर्वार्थसाधिकां शरण्यां सर्वभूतानां नमामो भूमिमातरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वमङ्गलहेतवे
विश्वधर्मेकमूलाय नमोस्तु परमात्मने विश्वधर्म विकासार्थं प्रभो संघटिता वयं शुभामाशिषमस्मभ्यं देहि तत्परिपूर्तये अजेयमात्मसामर्थ्यं सुशीलं लोकपूजितं ज्ञानं च देहि विश्वेश ध्येयमार्गप्रकाशकम् समुत्कर्षोऽस्तु नो नित्यं निःश्रेयसः समन्वितः तत्साधकं स्फुरत्वन्तः सुवीराव्रतमुज्ज्वलम् विश्वधर्मप्रकाशेन विश्वशान्तिप्रवर्तके हिन्दुसङ्घटनाकार्ये ध्येयनिष्ठास्तुरास्तु नः सङ्गशक्तिर्विजेत्रीयम् कृत्वा स्म धर्मरक्षणम् परमं वैभवं प्राप्तुं समर्थास्तु तवाशिषा त्वदीये पुण्यकार्यस्मिन् विश्वकल्याणसाधके त्यागसेवाव्रतस्यायं कायो मे पततु प्रभो। विश्व धर्म की जय।
सभी शिक्षार्थियों के यहाँ से जाने के बाद सभी मान्यवर दोनों ओर जो रास्ते हैं उनका जाने से उपयोग कर सकते हैं, पर पहले शिक्षार्थी और अधिकारी वर्ग को